This is part 2 of the chapter Tissue. In part 1, we discuss general about plant tissue and animal tissue and different type of plant tissue. In this video, we will discuss about animal tissue. Now, mainly 4 type of tissue we will discuss in this. That is epithelial tissue, nervous tissue, muscle tissue and connective tissue. So here you can see epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. But this is my humble request to all of you. Please go one by one. If you are reading about epithelial tissue, just go through the epithelial part only and try to learn. Then jump to muscular tissue, do the same. Then connective tissue and then nervous tissue. So first of all, we will start with epithelial tissue. Now, epithelial tissue is of 4 kinds: squamous, cuboidal, columnar, ciliated, and glandular. So, these are on the basis of their shape. Muscular tissue is of 3 kinds: striated, smooth, and cardiac. Smooth muscle fibers are also called non-striated. Striation मतलब क्या होता है? Dark and light bands जहाँ होते हैं उसे हम striated कहते हैं. कार्डियक आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है. कार्डियक इज प्रेजेंट इन कार्डियक मसल प्रेजेंट इन हार्ट. कनेक्टिव टिश्यू दैट मे बी फ्लूइड, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ, दैट मे बी स्केलेटल like bone, cartilage, and that may be proper connective tissue, that is areolar, adipose, ligament and tender. And the last one is nervous tissue. So first of all, we start with epithelial tissue. This is simplest tissue. This cover or protect, this is protective tissue, that is separated from underlying tissue, other tissue by basement membrane, hence always grow on other tissue. It can be simple, that is made up of one layer of cell, or stratified. एक नया word आया है हमारे पास, stratified. What that means? Made up of many layers of cells. Generally, epithelial tissue is tightly packed. That is, there is no space between cells. It is a continuous sheath. Where it is present? Skin is epithelial tissue, lining of mouth, blood vessels, alveoli, kidney tubules. So its location is following. It covers the organ and cavity inside the body and separate different systems from each other. As it forms the outer layer of skin, it protects the body from drying, injury and infections. Well, as whatever that enters the body or leaves the body must cross at least one layer of epithelium. ये note कर लीजिएगा. And that epithelial layer is squamous epithelium. Permeability of cells of epithelium is important for exchange of substances. What this permeability? हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था सेल वाले वीडियो में. What is permeability? That is, हम किसी सब्सटेंस को आने जाने बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, impermeable. किसी सब्सटेंस को, सेलेक्टेड सब्सटेंस को आने जाने दे रहे हैं, सेलेक्टिव परमेबिलिटी. एंड सिर्फ लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस को अंदर आने जाने दे रहे हैं, दैट इज सेमी परमेबिलिटी. सो whatever is written here, permeability of cell of epithelium is important for exchange of substances. Now, classification of epithelium on the basis of number of layers. I told you beta, either made up of single cell layer, that is simple, and stratified, made up of many cell layer. कितना अच्छा सा स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है. Now, on the basis of cell shape, it may be squamous. देखिए आप एक बार स्ट्रक्चर, cuboidal और columnar. Now, कुछ आपको एक एग्जाम्पल्स दे रखे. सिंपल cuboidal, सिंगल लेयर है. सिंपल squamous, सिंपल columnar एंड stratified squamous. देखिए आप एक बार, राइट. सो इससे हमें क्लियर हुआ कि epithelial tissue जो है, that is on the basis of number of layers divided into simple and stratified, and the basis of cell shape, it is divided into squamous, cuboidal and columnar. Now, एक एक के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. Now, type of epithelium, squamous ले लेते हैं. Structure कैसा होता है? Cells are thin, flat, irregular cells हैं, which fit like a floor tiles to form a delicate lining called pigment epithelium. न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट है बेटा? सेंटर में प्रेजेंट है. लोकेशन कहाँ कहाँ है इसकी? ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, लाइनिंग ऑफ माउथ,
एल्वेलाई, बच्चा छोटे छोटे सैक लाइक बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लंग्स में हमारे। अभी हम कोरोना का बारे में पढ़ रहे हैं कि ये हमारा जो कोरोना वायरस है बेटा, ये हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को खराब कर रहा है। तो एल्वेलाई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, जिसको ये खराब कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग को खराब कर रहा है। इसके अलावा ब्लड वेसल जैसे आर्टरीज एंड वेन्स, फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम इंजरी एंड फ्रॉम जर्म्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स एंड मटेरियल बिटवीन सेल्स एंड ब्लड, इसका मतलब 3 फंक्शन याद कर लीजिए, प्रोटेक्शन, इंजरी, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, germs, and exchange of gases. Exchange of anything, not only gases. Now cuboidal epithelium, cells are cuboidal with round nucleus in center. देखो आप, nucleus in center कहाँ present है? Kidney tubules. Kidney tubules होती है बेटा, अभी आपने नहीं सुना होगा, ureter and जिसके थ्रू यूरिन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है या यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है, दैट इज किडनी ट्यूब्यूल्स, जिसमें पीसीटी डीसीटी आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड जिससे हमारा सलाइवा सीक्रेट होता है, उसकी जो पाइप होती है उसे हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। ये क्या काम करता है? मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, राइट, मतलब प्रोटेक्शन। एट टाइम्स द एपिथेलियल टिश्यू folds form a gland that secretes substances. Such epithelium is called glandular epithelium. अगर यही epithelial layer एक sac like structure बना रही है और उससे कोई substance secrete हो रहा है, तो ऐसी epithelium को हम glandular epithelium कहते हैं। Now columnar epithelium. Cells are more tall and less wide. Pillar like होते हैं, placed side by side. Nucleus is कहाँ present है? देखो ध्यान से, at the base. कहाँ प्रेजेंट है ये वाला कॉलमनार एपिथेलियम? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सेल्स हैव सीलिया दैट मूव पुश द म्यूकस टू क्लियर इट। सच एपिथेलियम इज कॉल्ड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। बच्चा बहुत सारी जगह पर सेल्स की जो लेयर है उसके ऊपर सीलिया हम छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, वो अगर एपिथेलियम में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। काम क्या है? एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, सीक्रेशन का काम कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्ट्रिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रिएटेड आई टोल्ड यू मल्टीपल लेयर्स। स्क्वैमस हमारी शेप है जो फर्स्ट नंबर पे हमें दिख रही है। नाउ स्क्वैमस फ्लैट सेल्स अरेंज इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर ऑफ द पार्ट्स। टूटने फूटने से बचाती है। कहाँ प्रेजेंट है? स्किन पर। मल्टी लेयर होती है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। नाउ टंग में है, ईसोफेगस जो है वहां है, और माउथ में है। प्रोटेक्शन, प्रिवेंट वियर एंड टियर। नाउ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स वेरियस टिश्यू टुगेदर इन एनी ऑर्गन। मोस्ट अबेंडेंट होता है बेटा, टोटल एनिमल टिश्यू में सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। नाउ फंक्शन, बाइंडिंग का काम, सपोर्टिंग का काम, पैकिंग ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी का काम। Characteristics: few cells, loosely packed, large intercellular spaces filled with jelly-like substances called matrix. अब इसमें सबसे पहले आता है ब्लड। ब्लड जो होता है बच्चा एक लिक्विड, एक फ्लूइड मैट्रिक्स का बना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, जिसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा हुआ है इसके अंदर सेल भी प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। काम क्या करता है ब्लड? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फूड्स, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट टू पार्ट ऑफ द बॉडी। नाउ लिगामेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिगामेंट? इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। याद रखिएगा, याद करने का तरीका BBL, दैट इज बोन टू बोन का जॉइंट को हम लिगामेंट बोलते हैं, जबकि टेंडन जो होता है MBT, दैट इज मसल्स एंड बोन के जॉइंट को हम टेंडन कहते हैं। बस आप इतना सा याद कर लीजिए, बोन टू बोन के जॉइंट को लिगामेंट, मसल्स एंड बोन के जॉइंट को टेंडन। एरुलर टिश्यू, इट फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन टिश्यू रिपेयर, फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो। नाउ बोन, ये क्या बनाता है? हमारा स्केलेटन बनाता है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, राइट। ये स्ट्रॉन्ग होता है टिश्यू, नॉन फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है मुड़ जाएगा।
in which bone cells are embedded in hard matrix. बेटा हर एक सेल को एक मैट्रिक्स चाहिए होता है, एक लिक्विड चाहिए होता है. अब बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो बना होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का, इसलिए वो मैट्रिक्स हार्ड होता है. इसलिए बोन कैसी होती है? नॉन फ्लैक्सिबल. कार्टिलेज हार्ड इलास्टिक टिश्यू सॉफ्टन दैट देन बोन. ये याद रखेंगे, ये भी हार्ड है. जैसे आपके नोज पर क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज. लेकिन ये इतना हार्ड नहीं है जितना बोन होता है. मैट्रिक्स इज सॉलिड बट इलास्टिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कॉन्ड्रेन. याद रखिएगा प्लीज, ये ऐसा हार्ड है लेकिन इसमें इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ड्रेन, विच इज वाई वी कैन बेंड अ कार्टिलेज बट नॉट द बोन. आपके नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स सब में कार्टिलेज प्रेजेंट है. एडिपोज टिश्यू, ये हमारे स्किन के जस्ट beneath होता है. क्या काम करता है? इसमें बच्चा हमारा फैट डिपॉजिट होता है जो एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है. सो एडिपोज टिश्यू स्टोर्स फैट. तो दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू. अभी तक हम 2 टिश्यू पढ़ चुके हैं, एपिथेलियल एंड कनेक्टिव. नाउ द थर्ड वन, मस्कुलर टिश्यू. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन द बॉडी. कैरेक्टरिस्टिक्स, cells of muscular tissue are long, diagram में देखिए आप, and that's why they are called muscle fibers. They have special protein, contractile protein, इसलिए आपकी muscles में contraction और relaxation होता है जिसकी वजह से हम movement करते हैं. Now they are of 3 kind. Striated, आप बीच में देखेंगे lines दिखाई दे रही हैं, striations दिखाई दे रहे हैं. Unstriated, spindle shape है जिसमें कोई striations नहीं दिखाई दे रहे हैं. और स्ट्रिएटेड को ध्यान से देखेंगे तो वो ब्रांच्ड है, अनस्ट्रिएटेड ब्रांच नहीं है. कार्डियक अगेन ब्रांच्ड है एंड स्ट्रिएटेड भी है. राइट. नाउ द डिफरेंस बिटवीन दीज 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. स्ट्रिप्ड, स्ट्रिएटेड, स्केलेटल, वॉलंटरी मसल फाइबर बोलते हैं. व्हाट इज वॉलंटरी? जो हमारी विश से होता है, हम जब चाहते हैं. आप पेन उठा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रिएटेड मसल. अनस्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिप्ड इनवॉलंटरी मसल फाइबर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. कार्डियक मसल फाइबर ऑफ कोर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है. नाउ दे आर कॉल्ड स्ट्राइप्ड और स्ट्रिएटेड मसल एज दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रिएशंस. दे आर कॉल्ड वॉलंटरी एज दे मूव एज पर आवर विल. दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज अटैच्ड टू ऑल बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट. Why unstriped or non-striated? Because unstriped or non-striated because they do not have light and dark band. Structure में देखिए आप, they are involuntary as they do not move as per our will. On the other hand, the cardiac muscle is in between striated and non-striated. How come? These muscles show rhythmic contraction, relaxation throughout life and pump blood. हमारे हार्ट में प्रेजेंट है और throughout life काम करता है. अगर बात करें हम स्ट्रिएटेड मसल की तो उसके स्ट्रक्चर लॉन्ग सिलेंडर शेप, अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड. देखिए बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं. फाइबर अरेंज इन फॉर्म ऑफ बंडल्स दिख रहा है. हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स. अनस्ट्रिएटेड मसल्स की बात करें, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट, सिंगल एक सेल के अंदर. फाइबर अरेंज इन फॉर्म ऑफ शीट्स. डार्क एंड लाइट बैंड्स एब्सेंट. कार्डियक मसल शॉर्ट सिलेंडर शेप, ब्रांच सेल्स, यूनिन्यूक्लिएट अगेन. फाइबर अरेंज इन फॉर्म ऑफ नेटवर्क. थोड़ा सा फेंट होता है लेकिन डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट. लोकेशन याद जरूर करना है बेटा. लिम्स में, टंग में, बॉडी, फेस, नेक इंदर प्रेजेंट है. अनस्ट्रिएटेड आइरिस, यूरेटर, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स. एंड कार्डियक सिंपली इन हार्ट. वर्किंग contract quickly but can't remain contracted for long, so get fatigue. हम लगातार काम नहीं कर सकते हैं, थकान होती है. जबकि unstriated contract slowly but can remain contracted for long, so don't get fatigue. Contract quickly and rhythmically, therefore do not get fatigue or tired. Now the last tissue is our nervous tissue. Cells of the nervous tissue are called nerve cells or neurons. बच्चा ये भी fibrous form में है, जैसे हमारे muscle fibers होते हैं वैसे ही nerve fiber होता है. Many nerve cells are bound by connective tissue to make a nerve. याद कीजिएगा, many nerve cells are bound by a connective tissue to make a nerve. Now function. They are highly specialized tissue that help in transmitting stimuli from one place to other in the body. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ.
Right now, you're watching this video, you're listening to my voice. So these all work is because of nervous tissue, जो हमें क्या हेल्प कर रहे हैं, बाहर कोई भी बच्चा एक्टिविटी जो हो रही है उससे फेमिलियर करा रही है आपकी बॉडी को, और आपकी बॉडी उसको जो रिस्पॉन्ड कर रही है. सपोज इस टाइम आप ये देखते वक्त ब्लिंक कर रहे हैं आईज, ये सोच रहे हैं आप, या अपने आप को याद कराने का कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस टिश्यू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी. कहाँ प्रेजेंट है? ऑफ कोर्स ब्रेन में प्रेजेंट है. ब्रेन की स्टेम को हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, जिसका काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन. एंड नर्व्स, ये हमारे नर्व्स में प्रेजेंट होता है. एंड फाइनली दिस ऑल फॉर्म्स नर्वस टिश्यू. स्ट्रक्चर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट लुक लाइक अ ट्री, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और वो जो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं बेटा, दे आर डेंड्राइट. अब ये जो बीच का जो पार्ट है जिसमें से डेंड्राइट निकल रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल बॉडी. इस सेल बॉडी में छोटी छोटी तो डेंड्राइट है, लेकिन जो लॉन्गेस्ट डेंड्राइट है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन. इस एक्सॉन को भी अगर हम ध्यान से देखें तो इसके दोनों तरफ सेल प्रेजेंट है, जिन्हें हम बोलते हैं श्वान सेल. इन श्वान सेल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है बेटा, उसे हम बोलते हैं माइलिनेटेड शीथ. नाउ लास्ट में आता है हमारा टेल वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग्स. तो आपको लेवलिंग में क्या क्या चीजें लर्न करनी है? वन इज सेल बॉडी. सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस. अब सेल बॉडी से जो निकल रहे हुए फाइबर्स हैं, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. एंड द लॉन्गेस्ट डेंड्राइट इज कॉल्ड एक्सॉन. एंड एक्सॉन की दोनों तरफ जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं श्वान सेल. Now this Schwann cell is again covered by a sheath which is called myelinated sheath. Now nerve fiber का जो ending है बच्चा, उसको हम बोलते हैं nerve ending. So this is the structure of nerve fiber जो आपको अच्छे से draw करना है, कलरफुल से आपको बनाना है. अगर आप इसमें से नहीं अच्छे से बना पा रहे, it's okay, आप किसी और से भी बुक से भी बना सकते हैं. Now न्यूरॉन के 3 पार्ट्स हैं. एक स्टार शेप बॉडी है जिसको हम साइटोन भी कहते हैं या सेल बॉडी भी कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस भी है एंड साइटोप्लाज्म भी है. इसके अलावा एक लॉन्ग पार्ट है जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सॉन, जो क्या करता है? मैसेज कैरी करता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी. जबकि शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट जो है वो डेंड्राइट है, वो सेल बॉडी के पास मैसेज लेकर आता है, कैरी मैसेजेस टुवर्ड्स साइटोन. तो बाहर से जो मैसेज लेकर आ रहा है वो है डेंड्राइट. फिर सेल बॉडी से जो मैसेज आगे लेके जा रहा है वो है एक्सॉन. सो दिस इज ऑल अबाउट नर्वस टिश्यू. सो एनिमल टिश्यू वी हैव टू डिवाइड इनटू 4: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, connective tissue and nervous tissue. As I requested before I started this video, beta, one by one if you do, then it will be easy for you. So this is my request. प्लीज आप सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू उठाइए, उसको थोड़ा सा याद कीजिए, उसके एग्जाम्पल्स देखिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. कोशिश कीजिए अपने आप को रिमाइंड कराने की कि कहाँ कहाँ कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है. देन आप स्टार्ट कीजिए अपना मस्कुलर टिश्यू, जो 3 तरह का है, वो इजीली आपको याद हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. देन कनेक्टिव टिश्यू, अगेन कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि बहुत सारे तरह के हैं बड़े सिंपल तो हो तो जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. एंड द लास्ट नर्वस टिश्यू, वो तो बहुत छोटू सा है, वो तो बहुत इजीली हो जाएगा. सो आई एम श्योर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो. थैंक यू सो मच बेटा.